गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real account, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. This book में transactions की information आपने दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we thought to give the heading journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of supposedly January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger for you. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will record the entries. Okay. Without the columns. You
got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scaler and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger folio, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in the particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? Goods purchase किया 5,000 का कैश में. सैलरी पे की 4,000 की कैश में. फर्नीचर परचेस किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, यू कैन सी पहले की एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देन मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दे, अगर परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ऐसे लिखना कंपल्सरी है, आपको पता है कैसे लिखना होता है. एक्सक्यूज मी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज. ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर कम से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश कैश कैश, सॉरी सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश कैश कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसे कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchase, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so we'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you have to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, so individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we used to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy which you have to learn it very properly.
ये आएगा तो आपका अकाउंट और इजी हो जाएगा. नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी. फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ अकाउंटेंसी you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given, what the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और based on that फिर इसकी entry पास करें. Okay. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Continue watching the video till the end. Thanks again. Illustration number 1. Record the following transactions in the journal Books of Priya 2014 March month. Number 1. Goods of rupees 5,000 is purchased on cash. So what comes in? Goods comes in. So purchase account debit. What goes out? Cash goes out. To cash account. We got to write the narration. क्या आएगा narration? Being goods purchased on cash. Let us see the answer. Purchase account debit to cash account. Being goods purchased on cash, 5,000, 5,000. Next, goods of rupees 8,000 is purchased from Nandan on credit. What comes in? Goods comes in. So purchase account debit. Who is the giver? Nandan is the giver. So to Nandan account. 8,000, 8,000. Narration क्या होगा? Being goods purchased from Nandan. Clear? Next date number 7. Goods of rupees 4,000 is sold to Jigna. Jigna को मैंने goods यहाँ पे sale किया है. So Jigna is the receiver. Okay, Jigna is the receiver. So Jigna account debit. What goes out? हमारे पास से क्या जा रहा है? Goods जा रहा है. Goods जाए तो क्या लिखना है? Sales account. So Jigna account debit to sales account 4,000, 4,000. Being goods sold to Jigna. Okay. Next one. Commission received rupees 200. Commission मिला मतलब मुझे cash मिला होगा. So cash comes in. Okay. Debit. Commission is an income. So to commission account. Cash account debit to commission account 200, 200. Being commission received. लास्ट डेट 15. वेजेस पेड रुपीज़ 150. 150 का वेजेस मैंने पे किया है. ओके, सो वेजेस अकाउंट डेबिट. वेजेस एन एक्सपेंस. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मेरे पास यहाँ पे कैश गया टू कैश अकाउंट. बीइंग वेजेस पेड. बीइंग वेजेस पेड. लास्ट में आपको कर लेना है टोटल. टोटल किसमें आपको डबल लाइन ड्रॉ करनी है. जस्ट देख लो वापस से एक बार कैसे उसने डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है. इवन इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू make the format and everything. Okay, I hope so you understand this sum. Continue with the next illustrations. Now we will be learning about the combined journal entries. Combined journal entries का मतलब क्या होता है? अगर मैंने एक टाइम पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने अगर किए होते हैं और कुछ चीज़ें उसमें बहुत ही कॉमन अगर होती है, in that particular cases we will have a combined entry. Just for example, you can see on 15 Jan 2015 for wages rupees 300, for salary rupees 2000 and for telephone bill rupees 500 are paid in cash. ये सब मैंने एक ही दिन में पे किया है. तो सारे के सारे मैंने कैश में पे किए. तो individually if I pass the entry, you can see down wages account debit to cash 300, 300 being wages paid in cash. Salary account debit to cash 300, 2000, 2000 being salary paid in cash. टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड इन कैश. ये था इंडिविजुअल अलग अलग करके एंट्री पास की. बट सी आप देख सकते हो कि टू कैश सब में कॉमन है. तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करके एक एंट्री पास करूँ तो व्हाट इट विल बी? वेजेस अकाउंट डेबिट 300, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500, टू कैश अकाउंट 2800. अंडरस्टूड? सो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं जब हमारे पास कॉमन चीज़ें हो. सेम डेट पे अगर मैं कॉमन करता हूँ तो मैं इसकी कंबाइन एंट्री पास यहाँ पे कर सकता हूँ. कैरिंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. टू कमेंस द बिजनेस विद द नेम ऑफ राधिका हेल्पलाइन ब्रॉट इन बिजनेस 20,000 इन कैश लेकर आई है. मशीनरीज लेके आई है 10,000 रुपीज़ का और स्टॉक है 15,000 रुपीज़ का. राधिका हेल्पलाइन बिजनेस चालू किया, वो सब लेके आई है. मतलब ओनर अगर कुछ भी लेके आता है ये बनता है मेरे लिए वन टाइप का कैपिटल. ओके, सो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 20,000,
मशीन्स लेकर आए, मशीन कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट 20,000. स्टॉक लेकर आए, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000. टू कैपिटल, ओनर कुछ भी लेके आता है बिजनेस के अंदर, दैट बिकम्स द कैपिटल. ओके. बीइंग narration is very much compulsory. Being rupees 20,000 in cash, machineries of 10,000 and stock of 15,000 brought in the business, here commence the business. Now we'll be seeing the transactions related to capital and drawings. Okay. As you all know, anything brought by the owner of the business into the business is called as capital. And if the owner of the business spends money from the business for his personal use, or withdraws anything from his personal use, or incurs any expenses, personal expenses, okay, then it is considered as drawings. Illustration number 3. Ajay has commenced his business with the name of Awadh Enterprise. Write journal entries for transactions of July 2014. Okay, so date was given, date number 1. Introduce capital of rupees 50,000 and commence the business. Capital लेके आया मैं 50,000 रुपीज़ का और मैंने अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया है. ओनर कुछ भी लेके आया बिजनेस के अंदर, दैट बिकम्स द कैपिटल. कैपिटल लेके आया मतलब वो कैश लेके आया होगा. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 50,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस या इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड कमेंस द बिजनेस. लेट अस सी द आंसर. सी is given cash account debit to capital account. Okay, 50,000. Then next, brought goods, date number 4. Brought goods of 10,000, furniture 22,000 and debtors rupees 30,000 in the business. क्या क्या लेके आए? गुड्स लेके आए 10,000 रुपये का, फर्नीचर लेके आए 2,000 रुपये का और डेटर्स लेके आए 30,000 रुपये का बिजनेस के अंदर. ओनर यहाँ पे कुछ भी लेके आता बिजनेस के अंदर, दैट बिकम्स द कैपिटल. ओनर कुछ भी लेके आता बिजनेस के अंदर, दैट बिकम्स द कैपिटल. सो क्या हो गया इसमें यहाँ पे? गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, डेटर्स जिसको मैंने उधार पे गुड्स सेल किया है, दैट पर्टिकुलर पार्टी इज कॉल्ड डेटर्स, उसके पास से पैसे लेने बाकी होते हैं, तो डेटर्स लेके आया 30,000. टू कैपिटल, सबको प्लस लेके विल राइट डाउन टू कैपिटल. सी आंसर. गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000. ओके, टू कैपिटल सबको प्लस करके लिख दिया मैंने यहाँ पे टू कैपिटल में. ओके, 42,000 बीइंग जो चीज़ें वो लेके आया है, बीइंग गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स ब्रॉट इन द बिजनेस. नेक्स्ट वन, सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस. मैं खुद की बाइक थी, 20,000 की बाइक थी, 15 में बेची, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं. मुझे कुछ लेना देना नहीं मतलब मेरे बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं है. खुद की बाइक थी, बेची, जितने की थी इतने में बेची, उससे मुझे क्या, मुझे किससे लेना देना है? 10,000 रुपये जो बिजनेस में लेके आया उससे लेना देना है. तो 10,000 रुपीज़ ब्रॉट इन बिजनेस एज ए कैश, यू कैन से. तो बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कौन लेके आया? ओनर लेके आया, तो कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000. बीइंग पर्सनल बाइक, जो खुद की बाइक थी उसको बेची और बिजनेस में क्या लेके आया? 10,000. मुझे ये नहीं देखना कितने का था, कितने बेचा. आई डोंट वांट टू डू दैट. ओके, वो करने का काम का नहीं, वो पर्सनल चीज़ें है उसकी, वो खुद जाने. वो बिजनेस के साथ जो जुड़ी हुई है उससे मुझे लेना देना है, तो ये बिजनेस में लेके आया 10,000. दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000. नेक्स्ट, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल रुपीज़ 6,000 एंड पेएबल रुपीज़ 4,000. भाई मुझे किसी के पास से पैसे मिलने बाकी थे 6,000 रुपये और किसको पैसे पे करने बाकी थे 4,000 रुपये, तो मैं दोनों को बिजनेस के अंदर लेके आ गया. क्या वैसा मानूंगा तूने बिजनेस में पे किया, तो बिजनेस के अंदर कितना पैसा आएगा? 6,000. कितना जाएगा? 4,000. कितना बचा? 2,000. दैट बिकम द कैपिटल. सो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 6,000, पेएबल्स अकाउंट टू पेएबल्स अकाउंट 4,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग 2,000. आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर. रिसीवेबल मतलब डेटर्स, पैसे मिलने बाकी है 6,000, मतलब कैश आएगा 6,000. ओके, पे करना बाकी 4,000, कैश जाएगा 4,000, बाकी जो बचा है 2,000 वो बनता है मेरा यहाँ पे कैपिटल. होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद दैट. नेक्स्ट, पे किया मैंने इनकम टैक्स रुपीज़ 500. इनकम टैक्स मेरा पर्सनल एक्सपेंस है. अगर मैं कोई भी पर्सनल एक्सपेंस करता हूँ बिजनेस में से, तो ये बनता है मेरे लिए वन टाइप का ड्राइंग्स. ओके, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्या गया मेरे पास से? कैश गया. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स पेड इन कैश. ओके, देन नेक्स्ट,
विड्रॉ ₹1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस में से मैंने 1000 रुपये निकाले हैं खुद के पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए। पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर मैं पैसा विड्रॉ करता हूँ बिजनेस में से, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसके लिए? ड्राइंग्स। ओके, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से कैश गया तो टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 being 1000 withdrawn from business for personal use. नेक्स्ट, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। मैंने 200 रुपये पे किए LIC के लिए बिजनेस में से। ओके, वंस अगेन मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया। पैसे के बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस पे करे मतलब कि ड्राइंग्स हो गया, और बिजनेस में से पैसा गया मतलब टू कैश। सो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर? Next one, date number 25. You got to write the date on the date columns, huh? Be careful with that. Withdrawn goods of ₹400 for personal use from the business. ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने कैश विड्रॉ किया था तो ड्राइंग्स टू कैश था, लेकिन अगर मैंने गुड्स विड्रॉ किया है तो बिजनेस के पास से गुड्स चले गए बाहर, तो बिजनेस ने जितना भी गुड्स परचेस किया था उसमें से चला गया, तो परचेस मेरा कम हो गया, परचेस मेरा यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो परचेस बेसिकली डेबिट साइड पे होता है, कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कि कितने माल मेरा चला गया है। ये जो गुड्स गए हैं बाहर, इसको मैंने सेल नहीं किया है, इसको मैंने उन्होंने विड्रॉ किया है, तो इससे मेरा परचेस कम होता है, ये मानना है मुझे। एज पर अकाउंटिंग रूल्स इसका परचेस कम होता है, इसका मैंने सेल नहीं किया कि प्रॉफिट में लेके गया हूँ, मैं खुद का गुड्स खुद घर पे लेके जा रहा हूँ, इससे मेरा परचेस यहाँ पे कम हो जाता है। सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, 1 लाख का सामान लेके आता हूँ, 1 लाख के कपड़े, 1 लाख रुपीज़ के शर्ट्स लेके आता हूँ, 100 शर्ट्स लेके आता हूँ, 1000 शर्ट्स लेके आता हूँ 1 लाख रुपीज़ के। ओके, उस 1000 शर्ट्स में से मैंने 2 शर्ट लेके निकल जाता हूँ, घर पे लेके जाता हूँ 2 शर्ट, तो मैं बिजनेस में तो मैं 998 ही लेके आया ना, ऐसा मानूंगा ना, तो इससे मेरा परचेस कम हो गया। ओके, मैं क्या मानूंगा, मेरा परचेस यहाँ पे कम हो गया, मैंने सेल नहीं किया, मेरा परचेस यहाँ पे कम हो गया। तो विड्रॉन गुड्स अगर है तो विड्रॉ किया है मतलब ड्राइंग्स आता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सी द रिजल्ट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 400 गुड्स विड्रॉ करे तो टू परचेस। अदर देन गुड्स, अदर देन सेल्स, अगर कोई भी तरीके से गुड्स अगर बाहर जाते हो, सपोज कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गुड्स बाहर गया, ठीक है, गुड्स जल गए, गुड्स बाहर गए, क्या मतलब लॉस हो गया तो गुड्स बाहर गए, यू कैन से लाइक दैट। ओके, गुड्स सैंपल के तौर पे दिया तो गुड्स बाहर गए, गुड्स चैरिटी में दिया तो गुड्स बाहर गए, तो ये सब जो तरीके हैं अदर देन सेल्स के गुड्स बाहर जाने के, इन सब में टू लिखेंगे परचेस। ओके, नेक्स्ट, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 पेड फ्रॉम द बिजनेस। भाई मैंने कॉलेज की ट्यूशन की फीस पे की अपने बच्चे की 500 रुपये, अब बिजनेस में से मैंने पे किया तो ही यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस, तो मतलब पर्सनल एक्सपेंस हो गया। वंस अगेन पर्सनल एक्सपेंस करे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, 500 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500 एट द एंड यू गॉट टू मेक द टोटल, डबल लाइन आनी चाहिए, ड्रॉ द कॉलम प्रॉपरली। ओके, so today we have discussed illustration number 1, 2 and 3. To write these illustrations in the book itself, okay, and try to understand it. जितना हो सके पॉसिबल आप इसको बार बार रिपीट करके सुनते रहिए, जितनी पॉसिबिलिटीज़ है आप इसको सुनते रहिए आराम से, स्लोली ग्रेजुअली, सो दैट आपको ईजी लगने लगेगा। इट्स नॉट दैट कि आपको एक ही बार सुनने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, number of times, anytime if you want to, then you can. That's why I am uploading the videos for you people, कि आप इसको जितनी बार सुनोगे आपको उतनी क्लैरिफिकेशन से आप अकाउंट में और स्टेटिस्टिक्स में आप आती रहेगी। ओके, so I hope so you are understanding me very well. Okay, so keep revising the video, keep repeating whatever we have done till now in accountancy. Chapter number 1 theoretical, it's okay. Chapter number 2 keep on revising because that is the basic part. अगर वहाँ से हमारे रूल्स क्लियर होते हैं, ठीक है, देन ओनली वी आर एबल टू सॉल्व अवर जर्नल एंट्रीज, बिकॉज वहीं से डेबिट इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, हमको वहीं से सीखने को मिला है। गोल्डन रूल्स आपको याद करने हैं, उसके बेसिस पे आपको हर एंट्री काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अगेन।